Welcome to our channel Digital Pathshala. Today we will start a new subject, that is CBSE class 10 science. Okay, so we will cover all the topic of the subjects, and I can assure you after completing this course you will able to answer any question of any part of this subject. So शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. आई एम अर्घो दास. आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट and I am in now third year. ओके, तो शुरू करते हैं. तो हम सब जानते हैं कि सीबीएसई का जो एग्जाम है क्लास 10 का, वो टोटल 80 मार्क्स का होता है. जो रिटन एग्जाम है वो टोटल 80 मार्क्स कैरी करता है और इंटरनल असेसमेंट होता है 20 का, ग्रैंड टोटल 100. ओके, तो ये जो रिटन का टोटल 80 मार्क्स है वो हम लोग पूरा कवर करेंगे. ठीक है, तो today is our introduction class, so we will discuss whole syllabus chapter wise and discuss about the topics of the chapter. So let's start. तो जो there is 5 chapter. Okay, there is 5 chapter in our syllabus. The total 5 chapter cover 80 marks. Okay, then our first chapter is chemical substances, nature and its behavior, and second chapter world of living, third chapter natural phenomena, fourth chapter effects of current, and fifth chapter natural resources. Okay, so go to our first chapter, that is chemical substances and nature and behavior. So before going to the topics of the chapters, we'll discuss about the marks. Okay, it carry 25 marks और ये जो 5 टॉपिक है सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर and it will be very helpful if you take science after 10. Okay, so in this chapter there is 5 topic. Okay, there is 5 topic in our chapter. So टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन. ओके, तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या है? केमिकल रिएक्शन में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीफिकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, precipitation, neutralization, oxidation and reduction. Okay, then come acid, base and salts. Okay, तो इधर हम H प्लस एंड OH माइनस आयन के बारे में पढ़ेंगे. General properties of those ions, examples and uses, then come to the concept of pH scale, then importance of pH scale in our everyday life, preparation and uses of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda and plaster of Paris. Okay, then come metals and non-metals. So metals and non-metals में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे properties of metals and properties of non-metals, reactivity series, corrosion and its prevention, properties of ionic compounds, basic metallurgical process, etc. Then come to the fourth topic, that is carbon compounds. Okay, कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, homologous series, nomenclature of the carbon compounds containing functional groups like halogens, alcohol, ketones, aldehydes, alkynes, alkanes, etc. Then difference between the saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, chemical properties of hydrocarbon compounds, combustion, oxidation, addition and substitution reaction, then ethanol and ethanoic acid, etc. Then our chapter is periodic classification of the elements. That is, we will classify our whole elements in periodically, that is
इधर हम पढ़ेंगे नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन का जरूरत क्या है हम लोगों को, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, देन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसीज, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज. So those are the topics of this chapter: chemical substances, nature and behavior. So don't take tension, we will cover all the topics. Next comes to our second unit, that is the world of living. It carries 23 marks. Okay. ये सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है उसके बाद, और मतलब पहला चैप्टर जो है केमिकल सब्सटेंसेस, उसके बाद ये सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, मतलब 23 मार्क्स ये कैरी करेगा. ओके. तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस. ओके. तो इस लाइफ प्रोसेस में क्या क्या है, इस लाइफ प्रोसेस में है लिविंग बीइंग, मतलब जो जितना भी जिंदा जीव जंतु है, एनिमल्स है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्ट का, एक्सेट्रा. देन कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके. तो टॉपिक ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, introduction of plants hormones, control and coordination in elements, nervous system, etc. covered in this topic. Okay. Then come to the reproduction. What is reproduction in animals and plants? मतलब asexual and sexual दोनों reproduction हम पढ़ेंगे. reproductive health need and methods पढ़ेंगे, family planning पढ़ेंगे, safe sex versus HIV AIDS, child bearing, women's health, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे. उसके बाद आएगा evolution and heredity. Okay. There we cover the heredity like Mendel's contribution, law of inheritance of traits, sex determination, brief introduction of basic concept of evolution, etc. We will cover in this chapter. Okay. Then come to our next unit, that is natural phenomena. It carry 12 marks. Okay. In this chapter we will discuss about light. Okay. The whole chapter is about light. So we know everything about light, what reflection of light, refraction of light, etc etc. तो उसके लाइट पढ़ने के बाद लाइट का रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, etc. cover in this chapter. Then the third topics of this chapter is lens. It is very important. Okay. लेंस पढ़ेंगे, इट्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, इस मैग्निफिकेशन पावर पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंसेस के बारे में जानेंगे. ओके. देन कम टू द फोर्थ टॉपिक, दैट इज फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आईज. एक्चुअली हम लोगों का जो आंख है, मतलब ह्यूमन आई, वो एक लेंस है. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके. तो इसका जो डिफेक्ट्स होता है, प्लस पावर, माइनस पावर, इट जो होता है उसके बारे में जानेंगे. प्लस पावर क्या होता है, माइनस पावर क्या होता है, मतलब आंखों में जो चश्मा लगता है क्यों लगता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके. देन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वो स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज का, कि चश्मा कैसे बनाया जाता है, ये सब के बारे में जानेंगे. ओके. देन कम टू द फिफ्थ टॉपिक्स, दैट इज प्रिज्म. प्रिज्म होता है, सबको पता है प्रिज्म क्या है. तो प्रिज्म के बारे में जानेंगे. प्रिज्म के अंदर से अगर हम लाइट पास करेंगे तो क्या होता है, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन होता है. ठीक है. उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद स्कैटरिंग, जो लाइट चारों तरफ फैल जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे. इसका एप्लीकेशन है इन आवर डेली लाइफ, बहुत सारे एप्लीकेशन है प्रिज्म का, उसके बारे में जानेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट कम टू द फोर्थ यूनिट, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट. ओके. तो I am an electrical engineer, so it is very interesting topic for me. Okay. So let's discuss the topics covered in this chapter. Effects of currents. We cover two topics. Okay.
two main topics in this chapter, that is effects of current and second is magnetic effects of current. Okay, तो effects of current में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, factors on which resistance of a conductor depends, series combination of resistors, parallel combination of resistors and its application in daily life, heating effect of electric current and its application in our daily life, electric power, और जो ओहम्स फेमस ओहम्स लॉ है पीवी आई आर, ये सब लेके ये सब कवर करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ओके, और सेकेंड जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये सब के बारे में जानेंगे इधर। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इधर? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे, फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में जानेंगे, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में जानेंगे, उसके बाद फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में जानेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानेंगे। देयर इज अ इंटरेस्टिंग थिंग दैट हम लोग का जब क्लास 10 और 12, 10 में शायद, हाँ 10 में बस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ाया जाता है, बट फ्लेमिंग का एक राइट हैंड रूल भी है, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो देन देयर इज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, induce potential difference, induce current, Fleming's right hand rule. Oh yeah, it is there. Okay, Fleming's right hand rule के भी बारे में जानेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ये सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। देन come to our last chapter, that is natural resources. In today's world it is very important because हम लोग का जो इतना दिन से जो एनर्जी के लिए हम लोग खर्च करते आ रहे हैं लाइक कोल या फ्यूल, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। तो इसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर वर्ल्ड में इसका बहुत काम आने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम थ्री टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। एक सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंड आवर एनवायरनमेंट, थर्ड मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आवर एनर्जी, मतलब एनर्जी कन्वर्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एनर्जी कभी खत्म भी नहीं किया जा सकता और एनर्जी कभी मेड भी नहीं हो सकता, बस उसका कन्वर्शन होता है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, renewable versus non-renewable sources of energy. This is our main topic of the sources of energy. Okay, then come to our second chapter, which is our environment. Everybody know about our environment, but in this system, in this topic we will cover the scientific topic and क्यों एक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, ओजोन डिप्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे जो अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर को है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ओके, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे और उसका जो डिफरेंस होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के साथ, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। जो थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो in this topic we will cover conservation and judicious use of natural resources, forest and wildlife, coal, petroleum conservation, conservative forest, example of people's participation of conservation of natural resources, big dams, advantages and limitations, alternatives, बहुत सारे टॉपिक है इस चैप्टर में, सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो here it comes to the end. Okay, so we cover 5 chapters. Okay, so the 5 chapter is chemical substances and nature of and behavior, world of living, natural phenomena, effects of currents, natural resources. Okay, ये टोटल 5 चैप्टर के बारे में हम लोग हमारे पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे। तो टुडे इज आवर इंट्रोडक्शन क्लास, हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर होगा केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड इट्स बिहेवियर। ओके, तो
ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस, ठीक है। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा तुम सबसे, अगर तुम लोग ये क्लास कंटिन्यूअसली करोगे, मतलब सारे के सारे क्लास फॉलो करोगे, जो होगा इधर जो पढ़ाया जाएगा, तो तुम लोग इनफ कॉन्फिडेंट होगे, कोई भी क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे सब्जेक्ट से, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इसके साथ खत्म करते हैं आज। थैंक यू।